Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. As you know, in previous video, we have already started our lesson number 5, heat. In that video, we have started and we discussed about heat and temperature. And kids, in today's video, we will discuss about the different methods of transfer of heat. So, shall we start? So, let us start. Yes, dear students, here are some situations in which the heat transfer indicates. Like first one is a metal rod. When one end of the metal rod is put on the flame and its another end also soon become very hot. Is it right? Now, the second is when a glass of hot water is left on the table, it becomes lukewarm after some time. And the third situation, where the metal chair is left out in the sun on a hot summer day. On a hot summer day, it becomes too hot to sit on. So, these are the three different methods of transfer. Yes, dear student, so we will discuss the method of transfer of heat. So, first one we are doing is the method of conduction. Okay. Now, in conduction method, before discussion this method, I will tell you an activity. Like, suppose if I am standing here, I have some toffees with me, okay, and I want to distribute among these students. But the most important condition is that I don't want to change my position and these students don't want to change the position. Understood? कि मेरे पास मैं आपका जो एक टीचर है या लाइक मी आई एम स्टैंडिंग हेयर एंड आई हैव सम टॉफीज एंड आई वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग दीज स्टूडेंट्स. अब कंडीशन जो यहाँ पे ये है कि ना तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ ना ही मेरे ये स्टूडेंट्स. क्लियर? तो अब हम टॉफीज़ को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे बताइए. कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? नाउ जो एक मेथड मेरे पास एक मेथड है. क्या मेथड है? इसमें हम क्या कर सकते हैं? लाइक आई विल ट्रांसफ़र द टॉफी टू दिस स्टूडेंट विच इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. इट विल पास द टॉफी टू द नेक्स्ट वन, देन इट विल पास टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन एंड दिस. In this way it will transfer to the last student. Again फिर ट्रांसफ़र होगी वन को, it will transfer into two student, number 3, number 4 and then again number 5. Then फिर again number 1, number 2, number 3 and number 4, फिर number 1, 2, 3 and number 1, 2 and number 1. In this way we will transfer our toffees among these students without changing their position. Okay. In a same way heat is transferred from molecule to molecule, especially in solids. Okay, I am repeating. In the same way, heat is transferred from one molecule to another molecule, second molecule to third molecule and so on, especially in solids. Clear? इसी तरह से आपकी जो heat है वो ट्रांसफ़र होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, सॉलिड्स के अंदर. Clear? And the second important thing, the particles will not change their position. They just vibrate at their position. कि वो अपनी ही position पे just क्या करते हैं? Vibrate करते हैं and transfer the heat to the next. Then second molecule will vibrate and transfer the heat to the next molecule. Clear? The three basic things you have to learn. The first one is this method of transfer of heat is following in solids. Number 2, heat is transferred from one molecule to another molecule. ठीक है, without the movement of molecule. कि molecule की movement नहीं होगी. They just vibrate at their position. Clear बेटा? Yes बेटा, we are doing an activity to see the transfer of heat through conduction method. In this activity, I have taken one aluminium rod. Okay, and on that rod I have fixed some. यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को फिक्स किया है विद द हेल्प ऑफ वैक्स. ओके, नाउ आई हैव अ सोर्स ऑफ हीट जस्ट लाइक अ कैंडल. एज आई टोल्ड यू इन कंडक्शन मैथड कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल. और मैंने आपको इसमें ये भी बताया कि अगर हम एक एंड से चीज़ को गर्म करते हैं, इफ़ वी
हीट द वन एंड ऑफ द मेटल रॉड, अगर हम इसको एक एंड से गर्म करेंगे तो वो हीट क्या होती जाएगी, ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जब आप इसको यहाँ से एक एंड से आप गर्म करना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे हीट आगे आगे बढ़ती जैसे जाएगी वैसे ही वन बाय वन ये आपके जो पर्ल्स हैं, ये जो मोती हैं, ये क्या होंगे, वन बाय वन नीचे गिरते जाएंगे। अगर एकदम से ही नहीं गिरेंगे, क्योंकि अगर एकदम से हीट ट्रांसफ़र होती है तो इकट्ठे गिरेंगे, बट अगर वो धीरे धीरे स्लोली वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होगी तो दे विल मूव वन बाय वन। तो लेट अस सी कि कैसे हीट ट्रांसफ़र हो रही है। नाउ लेट अस सी। देखिए फर्स्ट वाला हो गया हीट ट्रांसफ़र। नाउ एज द हीट रीचेज अप टू द सेकेंड पर्ल द मैक्स विल मेल्ट और पर्ल जो है इट विल ड्रॉप डाउन। ये देखिए सेकेंड वाला भी हो गया। अब जैसे ही आपकी जो हीट है ट्रांसफ़र होगी हमारे थर्ड वाले की तरफ, थर्ड पर्ल पे, तो आपका मैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी। मैक्स जो है इट विल मेल्ट एंड इट विल ड्रॉप डाउन द पर्ल। Yes, clear beta? So this is the activity in which I am showing you कि how heat is transferred from conduction method. I hope आपको clear हो गया होगा कि it is the method of transfer of heat जिसमें molecules heat transfer करेंगे from one molecule to another molecule, okay? And the molecules just vibrate at their position and without the leaving their space. क्लियर? 3 बातें आपको याद रखनी है। मॉलिक्यूल एक से दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करेंगे एंड सो ऑन। सेकेंड बात, दे जस्ट वाइब्रेट होंगे लेकिन अपनी पोजीशन पे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये ध्यान में रखनी है कि दे विल नॉट लीव देयर प्लेस, वो अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेंगे। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी टू सी दिस। यस बेटा, एज यू सी इन द एक्टिविटी, आपने एक्टिविटी में देखा कि जब हमने अपना सोर्स ऑफ हीट को एक एंड पे रखा, लाइक मैंने कैंडल को एक एंड पे रखा हुआ था, बट जो हीट है वो हमारी ट्रांसफ़र हो गई दूसरे एंड तक। ओके, सो कहता है इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं विच अलाउ लाइट टू गोज थ्रू वन एंड टू अनदर एंड, दे आर नोन एज कंडक्टर्स। दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो लेट अस नो सी वेदर द हीट इज गो अलॉन्ग ईजिली थ्रू ऑल सॉलिड्स। अब क्या ऐसा सभी पे पॉसिबल है? अगर मैं वुड लेती हूँ, अगर लकड़ी को मैं एक एंड से गर्म करती हूँ, ठीक है, उसको एक एंड से मैं गर्म करूँगी, तो क्या वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे एंड तक? नो। आप लकड़ी को, वुड को आप इजीली उसका एक एंड पकड़ के रख सकते हो, है ना। एक एंड से अगर वो जल भी रही है ना, तो दूसरे एंड से आप क्या कर सकते हो, उसको यू कैन कीप इट विद योर हैंड्स। बट अगर हम बात करते हैं किसी मेटल रॉड की, ओके, अगर हम मेटल रॉड की बात करते हैं तो इन मेटल रॉड अगर आप उसको हीट कर रहे हैं एक एंड से तो दूसरे हैंड तक आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल आपको एक कॉमन एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है, ठीक है, व्हेन शी इज़ कुकिंग, तो कुकर का जो हैंडल है, जो आपका कुकिंग है बर्तन वाला, उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक कवरिंग होती है, तो इसीलिए वो आपकी मदर या आप इजीली उसको पकड़ सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपने उसके अंदर कोई स्पून डाला हुआ है, स्पून अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो स्पून के एक एंड को आप उसके अंदर थोड़ी देर छोड़ दीजिए एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स आप देखेंगे कि आप उसको टच भी नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। इट बिकेम्स टू मच हॉट बिकॉज देर आर सम मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू एम, दे आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, कहता है व्हेन वी, मैंने आपको बता दिया, व्हेन वी पुट वन एंड ऑफ द मेटल रॉड इन अ फ्लेम इट्स अदर एंड आल्सो बिकम्स हॉट, क्योंकि वो अपने में से मेटल हीट को क्या करने देता है, ट्रांसफ़र होने देता है। तो सच मेटल्स और सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वुडन रोड का, तो दे डज नॉट अलाउ, वो अपने में से अलाउ नहीं होने देते हीट को, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज बैड कंडक्टर। चाहे वुड की बात कर रही हूँ मैं, चाहे प्लास्टिक की एग्जांपल दिया मैंने आपको। सो बोथ ऑफ दीज, वुड एंड प्लास्टिक, विल नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, सॉरी लाइट नहीं, हीट विल नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और वी कैन कॉल देम एज इंसुलेटर्स। क्लियर बेटा? Yes students, now all metals are good conductor of heat, with some of them better than the other. Wood, ebonite, cotton,
plastic, cork, thermocol, air and water. They are the bad or poor conductor of heat. That's why they are called as insulators. Clear? तो जितनी भी हमारी metals हैं they all are good conductor. और wood, ebonite, cotton, plastic जितने भी examples यहाँ पे given है they all are insulators. Yes students, we put both good and bad conductors to many uses in our daily life. हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं गुड और बैड कंडक्टर के. सो लेट अस सी. नंबर 1, वी यूज़ मेटल्स टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. कुकिंग यूटेंसिल्स जो खाना बनाने के लिए आपके बर्तन मम्मा यूज़ करनी है, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. मेटल्स बीइंग गुड कंडक्टर एंड दे क्विकली ट्रांसफर द हीट ऑफ द फ्लेम टू द फूड आइटम. अब आपकी मम्मा ने चाय बनाना है या कुछ भी बनाना है, खाना बनाना है, चपाती बनानी है, सब्जी बनानी है, वेजिटेबल्स बनानी है, दे केप्ट द यूटेंसिल ऑन द फ्लेम. वो फ्लेम पे रखती हैं. फ्लेम की जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है आपके यूटेंसिल्स के अंदर, ठीक है, वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, तभी आपका खाना जो है वो कुक हो पाता है, ठीक है. तो मेटल्स बीइंग अ गुड कंडक्टर क्विकली ट्रांसफर द हीट ऑफ द फ्लेम टू द फूड आइटम्स केप्ट इनसाइड. एंड द फूड आइटम्स इसी वजह से जो हीट उसको मिलती है and get the heat and cooked. So metals are also used for making the kettles, boilers, boiler tubes for the same reasons. इसी same reason की वजह से जो हमारी kettles हैं, boilers हैं, वो बनते हैं. Now the second point is we use wooden और plastic handles. अब जो cooking utensils हैं, like अगर आप अपने घर में तवा देखते हो तो तवे का जो handle है वो wooden है ना. बहुत जब मम्मा चपाती बना रही होती हैं, इट बिकम्स वेरी हॉट, तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए वो वुडन हैंडल बना हुआ है, सो डैट यू कैन आप उसको उठा पाएँ, यू कैन कैरी इट वेरी इजीली. इन अ सेम वे हमारा जो प्रेशर कुकर है उसका जो हैंडल है या कोई पैन है, उन सभी के हैंडल्स किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के. ओके, द हैंडल्स हेल्प अस टू होल्ड देम सो डैट कि हम उनके हैंडल्स को पकड़ सकें, उनको होल्ड कर सकें, इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स आर क्वाइट हॉट. कि अगर आपका ऑब्जेक्ट उसके अंदर जो रखा है वो हॉट है, तभी भी हम उसको क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं. बिकॉज ऑल दीज हैंडल्स आर मेड अप ऑफ वुडन और द प्लास्टिक्स. बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक आर बीइंग इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर. क्योंकि मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ मैं कि वुड और प्लास्टिक जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं दे आर द इंसुलेटर. सो दे डू नॉट ट्रांसफर हीट टू आवर हैंड. दे डू नॉट ट्रांसफर द हीट ऑफ फ्लेम टू आवर हैंड. क्लियर? The third one is use of bricks and the mud for making houses helps to shield us from the heat of the sun during summer. अब हमारे जो हाउसेस बने हैं, कहता है वो ईंटों के एंड ब्रिक्स और मड के क्यों बने हैं? क्योंकि वो हमें समर के टाइम पे प्रोटेक्ट करते हैं सन की हीट से. बिकॉज दीज मटेरियल्स आर, yes beta, so these materials are bad conductor of heat, so that's why they do not allow let the outside heat to reach inside our home. So that's why अगर आपके ऐसे houses जिनकी जो roof है अगर वो tin की बनी हुई है तो they become very hot during the summer season. These examples are very very important. इनमें से questions आते हैं, so आपको बहुत अच्छे से understand करने हैं. Clear? Next आता है air. It is the bad conductor of heat. ये bad conductor है. आप विंटर सीजन में ब्लैंकेट, वुलन क्लोथ्स और क्विल्ट्स होती है रजाई, वो यूज़ करते हैं आप, है ना. तो हाउ दे कीप यू वार्म, वो आपको गर्मी कैसे देती हैं? बिकॉज इन बिटवीन योर बॉडी एंड दीज क्विल्ट्स, वुलन क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स द लेयर ऑफ एयर इज ट्रैप्ड. कि एयर की जो एक लेयर होती है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है. एंड दैट एयर डज नॉट ईजिली एस्केप आउट द हीट ऑफ बॉडी. अब वो एयर क्या करती है? आपकी जो बॉडी की हीट है वो उसको बाहर एस्केप नहीं होने देती. ओके, दैट्स वाई वी स्टे वार्म. क्लियर? नेक्स्ट इज आइस बॉक्सेस. आइस बॉक्सेस आर ऑफन मेड एज डबल्ड वॉल्ड कंटेनर. अगर आपने आइस बॉक्स को देखा है, इफ़ यू हैव सीन इट, इट इज़ डबल्ड वॉल्ड कंटेनर. बिकॉज वही डबल, अगेन वही यहाँ पे भी फंडा है कि जो डबल वॉल्स हैं उन दोनों के बीच में क्या है? लेयर ऑफ एयर इज ट्रैप्ड. और यही जो एयर है वो क्या करती है फिर? इट डज नॉट ईजिली लेट द आउटसाइड हीट इनसाइड. कि बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती. अगर वो हीट अंदर नहीं आएगी तो आपकी आइस भी मेल्ट नहीं होगी. क्लियर बेटा? सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कंडक्शन मैथड. इन दिस द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस, और देर आर सम एग्जाम्पल्स इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर. Clear? So these are the some examples of good and bad conductors which we use in our daily life. Yes, my dear kids. Now the second method of transfer of heat is convection method.
अब कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है, कहता है एज यू नो डैट द वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. हाउ डज द वाटर पुट इन अ केटल गेट हीटेड अप व्हेन इट इज पुट ओवर अ फ्लेम. तो अगर आपका पानी जो केटल के अंदर है वो कैसे बॉयल हो जाता है, वो कैसे गर्म हो जाता है जब आप उसको फ्लेम पे रखते हो. सो लेट अस सी. देन द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड्स एंड द गैसेज आर क्वाइट फ्री टू मूव. अब आपको पता है ये चीज़ कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर बिकम वेरी टाइटली पैक्ड. अगर हम सॉलिड्स की बात करते हैं हमारे, तो दे आर वेरी टाइटली पैक्ड लाइक दिस. Clear? That's why they are transferring their heat from one molecule to another molecule. But अगर हम बात करते हैं हमारे liquids की, if we are talking about liquid and gases, here the molecules are quite free. और gases में तो और भी ज़्यादा. Okay? गैसेस में दे आर क्वाइट मूव टू फ्री. ठीक है, तो वो फ्री होते हैं, दे कैन मूव इजिली. क्लियर? सो इट इज दिस एबिलिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स दैट कॉजेज अ लिक्विड टू गेट हीटेड अप. और इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर सकते हैं, द लिक्विड ऑफ गेट हीटेड अप. वी कॉल दिस मैथड ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड और गैसेज एज कन्वेक्शन. एक्चुअल में होता क्या बेटा, लाइक अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कंडक्शन का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होगी वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, बट पोजीशन जो है वो अपनी चेंज नहीं करेंगे पार्टिकल्स. बट नाउ यहाँ पे क्या होगा, सपोज हियर इज़ माई सोर्स ऑफ लाइट. यहाँ पे मेरा क्या है, सोर्स ऑफ हीट है. क्लियर? हियर इज़ माई सोर्स ऑफ हीट. ये मेरा सोर्स ऑफ हीट है. क्लियर? अब यहाँ पे आपके वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाउ व्हाट विल दे डू. अब यहाँ पे क्या मेथड यूज़ होगा, सपोज जैसे ही इस मॉलिक्यूल को हीट मिलेगी इट विल मूव हेयर, और इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, सेकेंड मॉलिक्यूल. देन द सेकेंड मॉलिक्यूल विल गेन, है ना, सेकेंड मॉलिक्यूल फिर यहाँ पे अपनी हीट को गेन करेगा एंड इट विल मूव here. Then the third one come here. यानी कि molecule will change their positions. अपर वाले में कंडक्शन में क्या था, मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं. बट इन कन्वेक्शन मैथड, ये आपको ध्यान रखना है, कन्वेक्शन मैथड में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल चेंज देयर पोजीशंस टू गेट द हीट. Yes beta, here is an activity to show the transfer of heat through the convection method in water. For this we need a material like round bottom flask, we need a candle, we need a tripod stand, one match box, water and potassium permanganate. Now after that we put the round bottom flask it on the tripod stand and fill it with some water and add some potassium permanganate in it. Now what will happen कि जो heat के ऊपर की जो आपकी potassium permanganate है when it start heated, तो इसकी जो फेम आप molecules हैं वो ऊपर की तरफ rise होना start हो जाएंगे like as seen in the picture. एंड स्लोली वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे एंड साइड से जो आपके पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएंगे अनटिल अनलेस जब तक आपका पूरा सोल्यूशन का जो कलर है वो पिंक नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. सो वी कैन से दैट द हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. क्लियर बेटा? नाउ द लिक्विड एंड गैसेस आर thus seen to transfer heat through their volume by the actual movement of the molecules. As I told you, मैंने आपको बता दिया था कि उनमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है. सो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन. ओके, तो कहता है कि यहाँ पे वी ऑफन रेफर, तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स. लिक्विड्स की बात करें चाहे फिर आप गैसेज की बात करें. क्लियर? और जैसे हमने डेली लाइफ के एग्जांपल्स रीड किए थे कंडक्शन में, तो यहाँ पे भी हम कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं अपने
कन्वेक्शन मेथड में. द यूज ऑफ विंडो एंड वेंटिलेटर्स इन द रूम, use of chimneys in the factories and the radiators in the car, these are the some common examples of the transfer of heat through convection. Clear बेटा? So अभी हम इनको one by one आगे डिस्कस करेंगे. The most important example of convection currents which play an important role in weather and climatic conditions. क्योंकि when the air at a place, जब एक प्लेस पे कोई एयर क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है. आपको पता है हवा या एयर जो है जब वो हीट हो जाती है तो इट बिकम्स लाइटर, वो लाइट हो जाती है. क्लियर? एंड इट विल मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. इट बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अप. तो जब ये अप कर जाएगी तो एयर प्रेशर क्या होगा, उस जगह का लोअर हो जाएगा. क्लियर? तो उस एयर की जगह लेने के लिए सराउंडिंग एरिया से जो और एयर है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं और इस तरह से आपके कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, जिसकी वजह से आपकी विंड्स या फिर स्टॉर्म्स कैरी होती हैं. क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज ग्लोबल विंड पैटर्न्स. अब ग्लोबल विंड पैटर्न्स क्या है? कहता है इट इज़ ईजी टू रियलाइज दैट देयर वुड ऑलवेज बी एन अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ पे ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे सभी जगह एक जैसा टेम्परेचर हो, नहीं होता ना. इट इज़ दिस अनइवन हीटिंग, और इस अनइवन हीटिंग की वजह से ही हमारे जो विंड पैटर्न्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. समटाइम्स कुछ एरिया में क्या होता है, बारिश आ रही होती है, कुछ एरिया में तूफान आ रहा होता है, समटाइम्स दूसरे एरिया में नहीं आ रहा होता. तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि हीटिंग जो है हमारी अर्थ की वो अनइवन होती है. यस बेटा. द प्लेस नियर द इक्वेटर. अब आपको पता है कि ये इक्वेटर वाली लाइन है आपकी जो सेंटर से गुजरती है ना. द लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज इक्वेटर. देन ही इज टोल्ड दैट कि हमारा जो प्लेस इक्वेटर के पास है ये मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है. अब आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम हीट को अगर ये एरिया रिसीव करेगा तो उस जगह की जो एयर है वो जल्दी वार्म अप हो जाएगी, जल्दी हीट अप हो जाएगी और वो फिर राइज कर जाएगी. अगर वो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो पीछे का जो प्रेशर है एयर का वो कैसा हो जाएगा, लो. दस लीव्स अ लो प्रेशर एरिया बिहाइंड इट. अब जैसे ही वो एयर राइज अप हो जाएगी एंड लो प्रेशर एरिया हो जाएगा तो जो साइड की एयर है, कूल एयर है, मेनली फ्रॉम द प्लेसेस 0 to 30 डिग्री, 0 to 30 डिग्री के बीच का जो फिर आपका एरिया है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस इक्वेटर वाले एरिया में. देखो इक्वेटर वाली जो एयर है वो तो जल्दी से हीटेड अप होगी तो राइज अप होगी, ऊपर की तरफ चलेगी, और उसका प्लेस खाली हो गया, प्रेशर वहाँ पे लो हो गया, तो उसकी जगह ले कौन आ गया, नियर बाय एरिया से एयर आ जाएगी जो कूलर है. क्लियर? 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड द इक्वेटर. देन मूव्स इन द टूवर्ड्स द इक्वेटर, और वो इक्वेटर की तरफ मूव करेगी. द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा द फास्टर डज द एयर मूव्स इन, उतनी ही जल्दी आपकी एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी. These winds blow from north and south towards the equator. नॉर्थ और साउथ से किधर जाएंगी वो, नॉर्थ डायरेक्शन से भी, ऊपर वाला नॉर्थ है यहाँ से भी, और साउथ से भी. किस तरफ जाएंगी बेटा, ये इक्वेटर की तरफ मूव करेंगी. क्लियर? सो यही कहता है एट द पोल्स द एयर इज कोल्डर देन द. अगर हम पोल्स की बात करते हैं, ये हमारा जो ऊपर वाला रीजन है पोल्स रीजन में, अब वो ठंडे एरिया होते हैं क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट नहीं पहुँच पाती है ना. तो कहता है द एयर इज कोल्डर, वहाँ पे एयर क्या होगी, कोल्डर होगी. देन एट द लैटिट्यूड से अबाउट 60 डिग्री. सो द विंड करंट्स हेयर आर सेटअप फ्रॉम द, तो इसीलिए वहाँ पे जो मूव करेगी एयर कहाँ से करेगी, फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द वार्मर लैटिट्यूड. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ से वार्मर एरिया से आपकी इन पोल्स एरिया की तरफ जाएगी क्योंकि वहाँ पे जो आपकी एयर है वो कूलर है. क्लियर? तो इसी तरह से हमारी लैंड एंड सी ब्रिज बनती हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि लैंड एंड सी ब्रिज की फॉर्मेशन कैसे होती है. नाउ वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोली देन द लैंड. ये आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो हीटेड अप, वो जल्दी गर्म नहीं होता, बजाय कि अगर हम वाटर और लैंड का कंपैरिजन कर रहे हैं तो लैंड जो है वो जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू वाटर. लैंड गेट्स हीटेड फास्टली. सो द एयर अबव द लैंड, जो हमारी लैंड की ऊपर की जो एयर है डे टाइम में वो जल्दी क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी. अब ये वार्म होगी तो ये क्विकली क्या करेगी, राइज अप हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी. देखिए ये डे टाइम है, यहाँ की जो लैंड है, क्योंकि डे टाइम में मैंने आपको बोला सनलाइट होती है तो लैंड जल्दी गर्म होगा. लैंड गर्म होगा इट मीन्स इसकी ऊपर की जो एयर है वो हीटेड अप होगी
एंड राइज अप, वो ऊपर जाएगी। अब यहाँ का स्पेस खाली हो गया, पीछे का प्रेशर कम हो गया, तो एयर अबव द सी लेवल, जो सी के ऊपर की जो एयर है वो इसका प्लेस लेने यहाँ पे आ गई। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज। क्लियर? क्या कहेंगे इसको हम, सी ब्रिज, एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। क्लियर? अब हम बात करते हैं नाइट टाइम में। अब नाइट टाइम में क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि लैंड जल्दी क्या होती है आपकी, हीटेड अप होती है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट वाटर कूल्स मोर स्लोली। अब पानी गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है। अब नाइट टाइम की अगर बात करें तो पानी ठंडा देर से होगा, लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, यानी कि गर्म हवा कहाँ पे होगी, गर्म एयर, वार्मर एयर कहाँ प्रेजेंट है आपकी, ऑन अबव द सी लेवल। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको एरो अपर डायरेक्शन में शो किया हुआ है, क्योंकि जो वार्म एयर है वो कहाँ से राइज अप करेगी, कहाँ से राइज अप करेगी बेटा, वाटर से, फ्रॉम अबव द सी लेवल, क्योंकि इट विल कूल डाउन स्लोली स्लोली। अभी नाइट टाइम में ये हमारा जो वाटर है वो वार्म है और लैंड हमारा क्या है, कूलर। तो वार्म एयर राइज अप करेगी और इसकी जगह लेने के लिए, टू टेक इट्स प्लेस, द एयर कम्स फ्रॉम द लैंड। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसमें बच्चे आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कहाँ से कहाँ आती है। आप याद रखिए, डे टाइम में आपका लैंड गर्म जल्दी होगा, लैंड बिकम्स वार्मर फास्टर, तो लैंड फार्मर्स जो है वो जल्दी वार्म होगा, तो दैट्स वाई एयर भी जो है वो आपकी लैंड वाली जो एयर है वो वार्म होगी, तो वो राइज अप करेगी और उसका प्लेस लेने कौन आएगा, कूल एयर आएगी फ्रॉम द सी ब्रेज। इसका अपोजिट होगा नाइट टाइम में। क्लियर? तो एंड यू हैव टू ड्रॉ द प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम्स एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर हो गया? और यही जो आपकी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज हैं, यही हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती है डे एंड नाइट पोजीशंस में। सो दिस इज अबाउट अ सेकेंड मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन। तो नाउ वी विल डू द थर्ड मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज रेडिएशन। यस, our next method is radiation. as the name indicate कि यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा, रेडिएशंस का यूज़ होगा। सम टाइम यू फील कि हम लोग जब विंटर सीजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, विंटर सीजन के टाइम में व्हाट विल वी डू, हम क्या करते हैं, अपनी जब बहुत ज़्यादा विंटर होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, देन व्हाट विल वी डू, हम क्या करते हैं, हम हीट को ऑब्जर्व करने के लिए वी विल सिट इन अ सन, है ना, अंडर द सन, हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो आफ्टर सम टाइम वी फील सम वार्म, हम थोड़ा सा वार्म हम फील करते हैं। हाउ इट पॉसिबल? या आजकल का जो आपका समर सीज़न चल रहा है, जो हॉट पीरियड चल रहा है, इस टाइम में क्या है, अगर आप थोड़े से टाइम के लिए भी अगर आप अपनी कोई भी चीज़, लाइक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी कोई भी मेटल की चेयर है या कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो आपका बाय मिस्टेक इट विल लेफ्ट आउटसाइड, अगर वो बाहर रह जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो इट विल बिकम हॉट। देन हाउ इट पॉसिबल? बिकॉज देयर इज़ आल्सो अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। बट नाउ जो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अब हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ना तो मॉलिक्यूल्स एक से दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेकेंड चीज़ ना ही मॉलिक्यूल्स खुद मूव कर रहे हैं जैसा कि कन्वेक्शन में हो रहा था। देन हाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स टेक प्लेस? Okay, so let us see. We feel hot when we stand out in the sun, when we are near a fireplace. Yes, आप सर्दियों में कभी आप आग सेकते हो, आप क्या करते हो, आप, है ना, आप क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाई आपने और आप उसके आसपास बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं, आपको हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? हाउ डज द हीट ऑफ सन और द फायर प्लेस रीचेज अस? हाउ इट विल रीच टू अस? द हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच अस, ना तो वो कंडक्शन मैथड से होती है, ना ही वो कन्वेक्शन मैथड से। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। क्योंकि आपको पता है सन कहाँ पे है, ऊपर, हमारे हमारे जो आपका एटमॉस्फेयर से भी ऊपर, है ना, तो वहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, खाली जगह है। सन और अर्थ के बीच में बहुत सारा वैक्यूम है, खाली जगह है। क्लियर? सो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स तो है ही नहीं। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। मटेरियल मीडियम मीन्स बीच में कोई ना कोई मीडियम चाहिए, लाइक मॉलिक्यूल्स चाहिए जो हीट को ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन ऐसा कोई मीडियम हमारे पास यहाँ पे नहीं है कि जो सन से हीट हम तक ट्रांसफ़र कर सके। तो कैसे पॉसिबल होता है? यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र
ये ऐसा मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का जहाँ पे कोई मटेरियल, नो मटेरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम आपको नहीं चाहिए। आप इसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था टॉफिस वाला, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, हर पर्सन को ट्रांसफ़र करानी थी, तो हम इसमें एक मेथड और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सपोज आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से टॉफिस डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आई जस्ट थ्रो, मैं डायरेक्ट थ्रो कर रही हूँ, आई विल डायरेक्टली थ्रो द टॉफिस और डायरेक्टली ट्रांसफर द हीट फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्लियरली क्लियर? सो दिस इज टाइप ऑफ रेडिएशन transfer method is known as radiation. This method of transfer of heat is known as radiation. Now, the heat energy received by an object through the radiation is called the radiate energy. अब यहाँ पे जो energy आप observe करते हो उसको हम क्या कहते हैं, radiate energy. Clear? When radiant energy falls on any matter or part, it reflected back, and some part of it is absorbed by the matter. For example, अब जैसे आपकी कैंडल जल रही है, कैंडल यहाँ पे कैंडल की फ्लेम से आपकी जो दो हैं यहाँ पे, टू आइडेंटिकल थर्मामीटर्स आर कीप देम साइड बाय साइड। अब ये देखने के लिए कि ये हम जो कह रहे हैं कि राइट है या नहीं, यहाँ पे इसने एक एक्टिविटी दी है, दो थर्मामीटर्स लिए हैं इसने, ठीक है, और उनके आपस ने क्या किया, एक ये ब्लैक पेपर और एक के ऊपर वाइट पेपर इसने रैप कर दिया है, अ पीस ऑफ थर्मामीटर ऑन द बल्ब, जहाँ पे थर्मामीटर का बल्ब होता है वहाँ पे, और दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे रखा है कैंडल के पास। वी ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर हैविंग द ब्लैक पेपर ऑन इट्स बल्ब, इस वाले कंडीशन में आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा राइज करेगा एज़ कम्पेयर टू दिस। डू यू नो वाई? बिकॉज जो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। अब आजकल समर सीज़न है, आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के देखिए, आपको इतनी ज़्यादा हीट महसूस होगी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, यू कांट वियर। जनरली पीपल लाइक टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर सीजन, बिकॉज लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते। सो दैट्स वाई वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर सीजन एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर सीजन। क्लियर बेटा? नाउ अब हम डेली हमारी लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। लाइक द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ केप्ट ब्लैक, आपके जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं ज़्यादातर उसका जो बॉटम है वो ब्लैक रखा जाता है। वाई? सो डैट इट विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर हीट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी जल्दी हमारा खाना होगा। सेकेंड, या मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, वी विल प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन बिकॉज दे विल एब्जॉर्ब लेस हीट, वो लेस हीट ऑब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? टी कॉफ़ी पॉट्स आर ऑफन मेड शाइनिंग ब्राइट, टी और कॉफ़ी के जो पॉट्स होते हैं उनको ब्राइट कलर का क्यों बनाया जाता है? दे रेडिएट, ताकि वो ही रेड, अगर आपने टी और कॉफ़ी डाली है तो ऑब्वियसली ये सारे ज़्यादा गर्म पीना पसंद करते हैं, टी एंड कॉफ़ी, है ना, ठंडा नहीं पीना पसंद करते, सो डैट कि वो काफ़ी टाइम तक क्या रहे, गर्म रहे, है ना, वो अपनी जो हीट है उसको कम रिफ्लेक्ट करे। थर्ड इज फायर ब्रिगेड मैन, वो भी शाइनिंग ब्रास कैप यूज़ करते हैं। वाई? दीज कैप अब्जॉर्ब वेरी लिटिल हीट, क्योंकि वो भी जो कैप पहनते हैं वो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करती है, एंड विच हेल्प देम फायरमैन टू पुटिंग ऑफ द फायर, जो उनको आग को, फायर को पुट आउट करने में, उसको बुझाने में हेल्प करती है। क्लियर? हाउसेज हैं आपके, हाउस में जब आप वाइट वॉश करवाते हैं तो जनरली आप लाइट कलर्स करवाते हो, क्योंकि उससे क्या होता है, लाइट जब आपकी ट्यूबलाइट्स या लाइट आप जलाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं, रूम बड़ा बड़ा लगता है। वहीं अगर आप डार्क कलर्स करवाएंगे तो वो स्मॉल लगेगा और वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड सेकंड थिंग, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से आपको गर्मी भी फील होगी, यू विल फील वार्मर। ओके बेटा? नाउ द नेक्स्ट इज मैनी बिल्डिंग्स इन द सिटीज have coated shining glass as their outer walls. These absorb and radiate very little heat. Same reason है यहाँ पे भी कि वो हीट को रेडिएट कर देते हैं, इस वजह से। द थर्मस फ्लास्क इज़ यूज टू कैरी, आप थर्मस फ्लास्क यूज़ करते हो विंटर सीजन में, ताकि आपका जो कुछ भी आपने उसके अंदर डाला है, चाहे वो पानी है, चाहे वो आपका कॉफ़ी है, चाहे वो टी है, वो ज़्यादा टाइम तक गर्म रहे। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी जो अंदर की प्रॉपर्टी है
इट मेक यूज द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग, और पॉली सरफेस जो उसका है वो एब्जॉर्ब करता है एज वेल एज द रेडिएटिंग वेरी लिटिल, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको बाहर नहीं जाने देता। क्लियर? सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों ट्रांसफर ऑफ हीट मैथड्स। In case you have any doubt, you can contact me. Thank you, dear kids.